So hello friends, if you want to take admission at top central university, for example Delhi University, BHU, JNU, then this video is for you. नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सार्थ मारवा and I've been teaching aptitude for more than 4 years and I'm a pass out of IIT Kharagpur. So let's get started. So today जो मैंने वीडियो बनाया है उसका जो टॉपिक है, this is the CUCT syllabus analysis. So अभी जो खबर आई है इसके अकॉर्डिंग जो CUCT है, it will be the DU, JNU and BHU they will be accepting the CUCT scores. So हम लोग आज CUCT का syllabus analysis करने वाले हैं. So let's get started. So basically the thing is कि the CUCT will be divided into two parts, part A and part B. The part A will be the aptitude test and the part B will be the subject specific test. Okay. So what will happen is in the part A it will be divided into 5 sections. 5 sections में divide होगा जो part A है. The first section will be the reading comprehension. Okay, तो पहला section है reading comprehension रहेगा, जिसमें basically a passage will be given to you and you will be asked questions based on that passage. Second will be the numerical ability, that is the quantitative aptitude. Okay, so this will be having 10 questions. The third part will be analytical skills and reasoning. This will be having 10 questions. Okay, fourth part will be English. This will also be having the 10 questions. Then fifth part will be the IT and general knowledge, which will be having 5 questions. तो इस तरह का हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है एंड टोटल द एप्टीट्यूड विल बी ऑफ 50 मार्क्स एंड मुझे ऐसा लगता है जो पार्ट बी होगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 50 मार्क्स. तो दिस इज द ब्रॉडर सिलेबस. अब हम इसको और फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सिलेबस फॉर इंग्लिश, जो इंग्लिश होगा दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. तो पहले सिनोनिम्स जो सिनोनिम्स पूछ सकते हैं आपसे, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, बेसिक ग्रामर पूछ सकते हैं. ओके, फाइंड द एरर वर्ड्स पूछ सकते हैं, फिल अप विद द सूटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो पूछ सकते हैं. फिर पैराफ्रेजिंग आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, फाइंड द एरर वर्ड मीन्स आपको एक कुछ एरर जो सेंटेंस दिया होगा इट माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ एरर एंड आपको बताना है कि उसमें क्या एरर होगी. ओके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप समझते ही हैं. इसके लिए आपको यू हैव टू स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी फॉर दिस. ओके, so this was the first part, English. The second part is the quantitative aptitude. Now what will the syllabus for quantitative aptitude? The first part will be the percentage. This is very basic level. All this quantitative aptitude you have studied in classes 8th 9th and 10th है ना, उससे हायर लेवल का नहीं पूछेगा. 11th 12th का मैथ्स नहीं आएगा इसमें, ओनली ऑफ क्लास 8th 9th 10th की मैथ्स इसमें आएगी. ओके, सो परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन. सो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. Third will be profit and loss, simple and compound interest. Fifth is mixture and allegations. Sixth is time, speed and distance. Seventh is work, time and energy. Eighth is averages and ninth is basic geometry. So बच्चों all these chapters you have studied till class 10th. उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उतना ही लेवल का आएगा. ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा. Then reading comprehension. Now basically what is reading comprehension is, जो आप अभी इंग्लिश के एग्जाम देते हो आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं from reading comprehension. What happens is a passage is given to you and that passage is from different sources. Now what can be the sources? The sources can be history, it can be current affairs, it can be geography, it can be political science, it can be science and technology, it can be philosophy, it can be psychology, it can be English literature, it can be economics, it can be sociology. So एक पैसेज होगा, a passage will be given to you from various sources and you will be asked different questions on that passage. Now क्या क्या questions आ सकते हैं? It can be fact based questions, it can be main idea based questions, it can be inference based questions, it can be what is the possible title of the passage, it can be the tone based questions. इस तरह से अलग अलग तरह के questions बन सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें क्या क्या आ सकता है बच्चों? सीरीज आ सकती है. सीरीज मतलब एक नंबर सीरीज आपको दी रहेगी और आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा उस सीरीज में. नेक्स्ट क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग. कोडिंग डिकोडिंग में फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3. नाउ टेल मी व्हाट इज द कोड फॉर d e n f. तो इस तरह से कुछ कोड दिया रहेगा, आपको उसको डिकोड करना रहेगा एंड आंसर करना रहेगा. फिर एनालॉजी. एनालॉजी में आपको सिमिलैरिटी देखनी होगी चीज़ों के बीच में. ब्लड रिलेशंस में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे in which you have to tell the relation between two people कुछ. ओके, देन सिटिंग अरेंजमेंट भी पजल्स टाइप के रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं. आप एक बार सीख जाओगे तो आपको इजी लगेगा. ठीक है, फिर सीरीज, अगेन सीरीज वही चीज़ है. फिर ऑड वन आउट रहेगा, फिर पेयरिंग्स और पजल्स रहेंगे, फिर सिलॉजिज्म रहेगा या फिर वेन डायग्राम रहेगा. ओके, वेन डायग्राम आपने शायद पढ़ा होगा. ठीक है,
सो द लास्ट पार्ट इज सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज इन आईटी। तो आईटी का जो सिलेबस रहेगा वो बेसिक, आजकल जो अपन इंटरनेट चला रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, उसके रिगार्डिंग रहेगा। आई ऑल्सो टीच आई बिकॉज आई एम पास आउट ऑफ IIT खड़गपुर। नाउ व्हाट इज द सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज? सो इन जनरल नॉलेज द फर्स्ट थिंग विल बी द करंट अफेयर्स द लास्ट 5 to 6 months। तो करंट अफेयर्स आएंगे, उसके अलावा क्या आएगा, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी टिल क्लास 8th 9th की आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी मेरे से, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स जीके, जैसे आपको ओलंपिक्स हुआ है या जो भी आपके कप्स अवार्ड्स जो भी ट्रॉफीज़ हैं वो आएंगे। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो होती हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक्स होता है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, जो बेसिक आपकी हिस्ट्री होती है, जो ब्रिटिश टाइम से जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी, इन मॉडर्न हिस्ट्री जो थी बेसिकली वो आएगी। एंड जो बेसिक आपकी जो रिलीजन होते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ओके। सो ऑल दिस इज द सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इसी तरह से CUCT के रिगार्डिंग और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। कुछ वीडियोस में यूट्यूब पे फ्री भी देने वाला हूँ। एंड आई प्रोवाइड EduPower Academy प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोचिंग फॉर CUCT। So if you want to take coaching for CUCT, you can download my app and then you can call me and contact me. Thank you very much. Please subscribe to the channel.